Hello everyone. Today we are going to discuss about the second part of the male reproductive system. In this part we are going to discuss about the semen and its composition, sperm and sperm capacitation, spermatogenesis and the factors affecting it. So this is just a reminder that reproductive system becomes active after puberty. During puberty, the reproductive organs mature to create a fertile individual capable of reproducing. जो ये puberty age होती है, that we discussed in the last class also. Then primary sex organs produce the sex cells, जैसे कि male में the sperm and in female that is the egg, and sex hormones. The accessory sex hormones are and the organs, all components involved in maintaining the sex cells and assisting in the process of fertilization. Then this is the just again revision of the male reproductive system. In this we have seen that this is the testis and this is epididymis, and then after formation of the sperms are going into this vasa deferens, that is ejaculatory duct में यहाँ पे जाके, and then the fluids from the seminal vesicles and the prostate are coming into this ejaculatory duct and this coming to the urethra, and this is the bulbourethral gland which is giving secretion to this, and then finally this semen is coming out through the urethra. So this was just the revision of that last class. Then semen proper. So this 5 marks, 10 marks it may come. So you have to describe about what is semen and what are the contents of the semen. Semen is having sperm, fructose, that is the you can say the energy for the sperm, and clotting and anticoagulant factors, the prostaglandins and the spermin. तो ये था major constituents of the semen. अब हम बात करते हैं sperm की. तो semen also known as seminal fluid is an organic fluid created to contain spermatozoa. तो sperms को contain करके sperm के साथ साथ क्या क्या जाएगा, and sperm कैसे survive करेगा, sperm कैसे आगे बढ़ेगा, and how the sperm becomes active and capacitation कैसे होगा. तो all the things are decided, and semen is actually the fluid which is helping in all that activities. So it is a fluid that is ejaculated during orgasm from the male genital tract. It contains sperm, seminal fluid, secretion from the prostate, the proteolytic and the other enzymes as well as fructose promote the survival of the spermatozoa and provide a medium through which they can move or swim. ठीक है. So all the glands they are secreting their secretion into the semen only, and this is helping the sperm. नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ सीमेन. तो ये ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ सीमेन. तो इट्स वॉल्यूम अबाउट 2.5 ml to 3.5 ml पर इजैकुलेशन. पर इजैकुलेशन ऑलमोस्ट 2.5 ml से 3.5 ml का इजैकुलेशन रहता है. एंड सीमेन इज अ वाइट opalescent fluid which coagulates immediately by a factor from the seminal vesicles. Seminal vesicles जो उससे secretion निकलता है उसमें coagulant substance भी रहता है. So because of that this coagulates but liquefies later, यानी 15 to 20 minutes के बाद वो liquefy होता है, यानी उसमें anticoagulant वर्क करता है और उसको वापस liquefy कर देता है, fluid बना देता है, एकदम जैसे बोलते हैं कि एक thin fluid. Otherwise it is thick fluid. क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस. प्रोस्टेटिक जो स्पेसिफिक एंटीजन्स होता है PSA बोलते हैं, उसकी वजह से. एंड PSA लेवल इज माइंडेड इट्स अ वेरी गुड मार्कर फॉर वेर सो मच एबनॉर्मलिटीज इन द प्रोस्टेट. देन pH is about 7.4 to 7.5. It is maintained by the buffers like phosphate and bicarbonate buffers. हम लोग पढ़ेंगे बफर के सिस्टम कैसा होता है कि अमोनिया बफर या फॉस्फेट बफर या बाइकार्बोनेट. जैसे बाइकार्बोनेट में HCO3 हो गया, HPO4 हो गया, फॉस्फेट. तो दीज आर द बफर्स विच मेंटेनिंग द pH ऑफ द सीमेन, एंड इट इज अ 7.4 to 7.5. दैट मीन्स इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन other than the body fluids due to alkaline prostatic fluid यहाँ पे है. This is necessary
क्यों नेसेसरी है इसको एल्कलाइन होना? क्यों? क्योंकि इन वेजाइना में क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द सिक्रीशंस आर एसिडिक. सो इन दैट एसिडिक सिक्रीशन दे मे हार्म द स्पर्म, दे मे चैलेंज द सर्वाइवल ऑफ द sperm. That's why this seminal fluid is having the alkalinity with it. यानी उसको वहाँ पे भी बफर करना है, इसलिए वो यहाँ से alkaline system लेके चल रहा है. Then the sperm count is 40 to 100 millions per ml. Of this 80% should be normal and motile. 80% normal and motile होना चाहिए. Sterility occurs if the sperm count is below 20 million per ml. 20 मिलियन से कम हो जाता है तो वहाँ पे स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी कि द पर्सन कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है. सो द दोज अबव हैव स्पर्म काउंट ऑफ 20 to 40 मिलियंस पर आर स्टेराइल, यानी जिसका 20 से अबव है वो दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव अ बेबी. अदरवाइज लेस देन 20% होगा तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी वाली बात आ जाती है. देन सीमेन कंटेन्स फ्रक्टोज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल जो मोस्टली 70% जो उसका जो कंटेंट है सीमेन का, सो वहाँ से फ्रक्टोज भी आ रहा है. फ्रक्टोज क्या करता है? इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म को जब मूव करना है, आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है, सो फॉर दैट एनर्जी इज नीडेड एंड दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द फ्रक्टोज. सीमेन ऑल्सो कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स in high amount together with the zinc, citric acid, phospholipids, spermine etc. बात करेंगे अभी ये सब क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इनका. अब आता है दिस वन. सो एक ये दिस इज द पिक्चर ऑफ वन स्पर्म एंड दिस इज हैविंग लेंथ ऑफ 55 to 65 माइक्रॉन. इसका जो हेड है, हेड इज अबाउट 4 to 5 माइक्रॉन इन लेंथ विच कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल दैट इज द न्यूक्लियस. स्पर्म सेल्स फ्रॉम द एपिडिडमिस आर प्रेजेंट एट द काउंट ऑफ, ये पहली बात कर चुके हैं, 50 to 120 मिलियंस पर स्पर्म, और अगर 20 से लेस होता है तो वो इनफर्टिलिटी हो सकती है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये दिस इज द हेड एंड दिस हेड इज हैविंग द दिस पार्ट इज एक्रोसोम विच इज हैविंग द एंजाइम्स एंड यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस द मेन जेनेटिक मटेरियल. इसके बाद बेसल बॉडी आ गया और यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज. दीज माइटोकॉन्ड्रियाज आर गिविंग द एनर्जी, दैट मीन्स एटीपी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है. इसके बाद इसका नीचे वाला पार्ट आ गया एक्सोसोम, एक्सोनीम एंड देन द टेल पार्ट. ठीक है. सो दिस लाइक दिस हेड कंटेन्स द डीएनए. ठीक है. हेड कंटेन्स द डीएनए एंड एक्रोसोम विद एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेटिंग द एग. जो फीमेल एग है उस एग के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, तो जो हेड पार्ट है, दैट हेड पार्ट दैट इज हैविंग द एक्रोसोम पार्ट, वहाँ पे एंजाइम्स रहते हैं. एंजाइम कौन सा रहता है? दिस इज एक्रोसोमल कैप विच इज हैविंग द हाइलोरिनोनिडेज. ठीक है. हाइलोरोनिडेज यानी डेज माने एंजाइम, तो हाइलोरिक एसिड पे काम करेगा, यानी कि जो भी वहाँ पे ऐसा है, तो एक तरह से एंजाइम है जो लेयर को डिसॉल्व कर देगा. जब लेयर डिसॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेनिट्रेट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे वो आसानी से एंट्री कर सकता है. तो दीज एंजाइम्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर पेनिट्रेटिंग थ्रू द वॉल ऑफ द ओवम एंड दस फॉर द फर्टिलाइजेशन. The middle piece contains the axial filaments, microtubules surrounded by the mitochondria which supply the ATP. Yes, and the tail moves like a flagellum. ये जो tail है यहाँ पे, this is the tail. ये आप देखिए ये tail. This is the tail which is moving like the flagellum. जैसे कभी देखा होगा कोई fish move कर रहा है या कुछ flagellum करता है. So like that, this giving the movement, and because of that it gets the velocity of 1 to 4 mm per minute. During development, the spermatozoa get nutrition from the Sertoli cells. हम लोग बता चुके हैं कि Sertoli cells जो होती हैं वहाँ पे the testis में, those are the Sertoli cells and the interstitial cells of lady. तो जो Sertoli cells हैं वो हेल्प करती हैं इनका न्यूट्रिशन में. And from that fluid within the seminiferous fluid. This fluid is rich in protein including androgen binding protein ABP. यहाँ पे जो ABP है वो किसको बाइंड कर रहा है? वो बाइंड कर रहा है टेस्टोस्टेरोन को. क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज हेल्पिंग इन द मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड मेनी अदर एक्टिविटीज ऑफ द मेल reproductive system. So this ABP is having a very important role in this, and the cytosol and by potassium and glutamic acid and the aspartic acid. The sperm while in the seminous fluid are not मोटाइल. जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है, बन गया, उसके बाद जो उसके ल्यूमेन में आ जाता है,
इन दैट टाइम इट इज़ नॉट मोटाइल, अभी उसमें उतना एक्टिविटी मोटाइल नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो, जितना बैक फ्लो में उसमें जितना भी उसमें बैक प्रेशर बन रहा है, जितना फ्लूइड सिक्रीट होता है तो उसको वो थोड़ा सा धक्का मारता है. सो बिकॉज ऑफ दिस become motile while passes through the epididymis only. The sperms moves up to the vas due to positive pressure of the fluid in the seminiferous tubules. ठीक है, जो सर्टोलाइज सेल्स धीरे धीरे फ्लूइड सिक्रीट कर रही हैं उसको जो हेल्प करेगा सर्वाइवल में. ठीक है, तो वो जो फ्लूइड आ रहा है उसकी वजह से वो प्रेशर बनता है. बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव प्रेशर इट इज मूविंग अप एंड दैट कमिंग टू द epididymis. The sperm can be stored for a long time in the epididymis before ejaculation. अब बात आती है कैपेसिटेशन. एक टर्म आता है 5 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज कैपेसिटेशन, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे. ठीक है, सो स्पर्म कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस आफ्टर विच द स्पर्म्स कैन मूव विगरसली, यानी अभी तक तो उतना विगरसली मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जब कैपेसिटी आ जाती है, कैपेसिटेशन हो जाता है, देन द स्पर्म कैन मूव वेरी विगरसली and become able to attach to the ovum for fertilization. This occurs only when the sperms spend some time in the female genital tract. वहाँ पे जब रहता है कुछ देर तब उसके अंदर ये कैपेसिटेशन आता है and then becomes motile and can penetrate. This is called capacitation. After being deposited in the female genital tract, the sperm live up to 48 hours inside the female genital tract. फेट ऑफ स्पर्म की बात करें तो वायबल फॉर 2 days एंड एग इज वायबल फॉर ओनली फॉर 12 to 24 hours, यानी एक दिन तक फीमेल एग कैन सर्वाइव. और ओनली 100 रीच इन द डेस्टिनेशन, ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइज द एग्स. आउट ऑफ दोज मिलियंस, 50 millions 20 millions, ओनली 100 रीच द डेस्टिनेशन और ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइज द एग, यानी बाकी सब जो बाराती हैं, दूल्हा सिर्फ एक है. और बात करते हैं हम लोग, जो बात कर रहे थे अभी तक कि सीमेन में बात किया, सीमेन में हमने स्पर्म का बात कर लिया. अब बात आता है फ्रक्टोज का. तो फ्रक्टोज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स बाइंड इट एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म. दूसरा था क्लॉटिंग एंड एंटीकोगुलेशन फैक्टर्स. तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से निकल रहे हैं, फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, एंड एंटीकोगुलेंट फ्रॉम द प्रोस्टेट. So semen clots like blood and after 15 to 20 minutes later when it is outside, so it can be dissolved like a thin fluid and because of anticoagulant. ठीक है, जो कि उस फ्लूइड में पहले से ही रहते हैं. And then the semen is having prostaglandins. Prostaglandins क्या करते हैं, this is produced by the prostate and the seminal vesicles. ये जो होते हैं कीमोकाइंस जो होते हैं, जो सेल पे एक्ट करेंगे. ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, जो पीजी बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑफ सीरीज होती है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है. तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स इट गोज फॉर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो मूवमेंट आगे बढ़ता है, तो दैट इट हेल्प ड्रॉ सीमेन इनटू द यूट्रस. तो बिकॉज ऑफ दिस स्पर्मिन is a base that reduces the acidity of the female vagina. क्यों, क्योंकि स्पर्म के सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ पे स्पर्मिन और रहता है. कंट्रीब्यूशन इन द सेमिनल फ्लूइड, अगर बात करें कि कौन कौन सी ग्लैंड से फ्लूइड निकल के सेमिनल फ्लूइड बना है एंड व्हाट आर द कंटेंट्स, तो उसकी मैं बात करेंगे. तो दिस इज द पिक्चर विच इज शोइंग, दिस इज द सेमिनल वेसिकल secrete 60% or 70% of the clear alkaline seminal fluid with fructose, sugar, ATP and the prostaglandins for normal sperm nutrition and function. Chemicals for the coagulation of the semen भी इसमें रहता है. दूसरा बात हमने बात किया यहाँ पे प्रोस्टेट का. प्रोस्टेट जो होता है it is having milky, slightly acidic seminal fluid which an antibiotic to kill bacteria. और क्या रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक्ट कर सकते हैं, स्पर्म को लाइफ एंडर्जर कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एंटीबायोटिक थिंग्स भी रहती हैं. तीसरा है छोटी सी कॉर्पस ग्लैंड है जो कि सिक्रीट क्लियर एल्कलाइन म्यूकस टू द बफर एंड ल्यूब्रिकेट यूरेथ्रा. यहाँ पे छोटा सा चार्ट दिखाया हुआ है. इस चार्ट में कंपैरिजन छोटा सा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं टू मेमोराइज द थिंग्स.
टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेट जो फ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ टेस्टिस सेमिनल फ्लूइड में 2 to 5%, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स का 65 to 75%, प्रोस्टेट का 25 to 30% एंड द काउपर्स ग्लैंड, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसका होता है लेस देन 1%। क्या क्या रहता है वो सब हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार जल्दी देखने के लिए क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 200 million to 500 million spermatozoa, also called sperm or spermatozoon, produced in the testes are released per ejaculation. In a human undergoes for the vasectomy, he will not be there will not be sperm in the ejaculation. अगर टेस्टिस निकाल दिया जाए या वैसेक्टमी कर दिया, उसकी वास डिफरेंस को काट दिया जाए, तो अगर वास डिफरेंस कट गया तो यानी वो पैसेज बंद हो गया तो स्पर्म कैन नॉट गो फ्रॉम द एपिडिडिमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी वो अब सीमेन में नहीं आएगा। और सेमिनल वेसिकल्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दिस इज हैविंग अमाइनो एसिड्स, साइट्रेट, एंजाइम्स, फ्लैविन्स, फ्रक्टोज, सब कुछ है इसमें। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि phosphoryl and the prostaglandins already discussed involved in the suppressing and immune response of the female genital tract. It is having also proteins and vitamin C. प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट इज हैविंग एसिड फॉस्फेटेज, साइट्रिक एसिड, फाइब्रोनाइलिन एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। माइंडेड याद रखिएगा, इट इज़ वेरी मच इंडिकेशन फॉर द मैनी प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स, है ना। It having zinc which is serves for the stabilize the DNA content and chromatin in the sperm cells. A zinc deficiency may result in lowered fertility because of increased sperm fragility. अगर जिंक की कमी है तो स्पर्म फ्रेजाइल हो जाता है, स्पर्म फ्रेजाइल हो जाएगा तो इट विल कॉज द स्टेरिलिटी, ठीक है। जिंक डेफिशिएंसी कॉज स्टेरिलिटी, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें क्या है, गैलेक्टोज है, म्यूकस है, एंड विच सर्व्स टू इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म सेल्स इन द वेजाइना एंड सर्विक्स बाय क्रिएटिंग ए लेस विस्कस चैनल फॉर द स्पर्म सेल्स एंड स्विम थ्रू, स्पर्म हैज टू स्विम इन दिस फ्लूइड। सो इस फ्लूइड में स्विम करने के लिए ही ये सब फ्लूइड रहता है और उसको स्पर्म को नेसेसरी न्यूट्रिशन एवरीथिंग इट इज गेटिंग फ्रॉम दिस सेमिनल फ्लूइड ओनली। आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ऑल्टरनेट ईयर्स में ये भी पूछा जाता है कि जस्ट टेल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, और oogenesis भी आता है, वो हम लोग लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो दिस हैविंग स्टेप्स। पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन द प्यूबर्टी एज इज अराइजिंग, तब वहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट स्पर्मेटोगोनिया, जो बेसिक जो प्लूरिपोटेंट जो जिसको बोलते हैं काइंड ऑफ स्टेम सेल इज देयर, सो दैट स्टेम सेल विल डिवाइड थ्रू द माइटोसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। उस 2 में से एक जो रहती है वो रिजर्व रह जाती है, एंड एक जो दूसरी वाली होती है वो आगे फर्दर मियोसिस में चली जाती है, यानी दिस वन इज गोइंग टू डेवलप फर्दर इनटू द स्पर्म्स एंड वन इज रिमेनिंग एज अ रिजर्वायर, वो हमेशा रहती है। उसके बाद फिर वो 2 बनेगी तो उसमें से एक रह जाएगी, फिर 2 बनेगी तो एक रह जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते नहीं है कि जैसे किसान कोई फसल काटता है तो कुछ वो बीज रखता है वो अगले साल की फसल के लिए, उसको बीज के रूप में रखता है। तो ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि इन दैट 2 cells, 1 cell will be remaining in the stage of primary only and the other will go for further development and maturation. अब आता है stage 2 in this meiosis. This is a reduction division that takes a cell through 2 rounds of division, meiosis 1 and meiosis 2 यहाँ पे होता है। तो इसके बाद meiosis 2 होने के बाद क्या होगा, at the end 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव सेल्स यानी 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है, विच विल फर्दर गो इनटू द फॉर्म मैच्योर स्पर्म। यानी एक जो प्राइमरी सेल थी वो 2 में डेवलप हुई, 2 में से एक रह गई एज अ रिजर्वायर और एक ने फर्दर मैच्योरेशन डेवलपमेंट शुरू किया। अल्टीमेटली उस एक से जो डेवलप हो रही थी 4 स्पर्म्स बने लास्ट में, ठीक है। एंड देन there is a stage 3 that is called spermiogenesis. Spermatids mature into sperm. The cell develops a long flagella. अब उसमें long flagella जो सेल थी उसमें फ्लैजिला बनने लगता है, उसमें मिड पीस बन जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, एंड हेड जो होता है, हेड पार्ट जो भी पिक्चर देखा था हम लोगों ने, उस हेड पार्ट में DNA जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि न्यूक्लियस उसमें रहता है,
At the tip of the head lies a sac filled with digestive enzymes called एक्रोसोम. वो जो एक्रोसोम जो पार्ट था वहाँ पे एक्रोसोम में वहाँ पे एंजाइम्स रहते हैं. बता चुका हूँ पहले ही कि वो दैट विल हेल्प इन द पेनिट्रेशन. ठीक है. एंड अदर सेल्स इन द टेस्टिकल्स परफॉर्म जॉब्स लाइक असिस्टिंग द सेल्स टू मैच्योर एंड एग्जिट द स्क्रोटम, रिफर टू एज द नर्स सेल, जो उसको नरिशमेंट दे रही हैं. प्रोड्यूस मेल एंड्रोजेंस लाइक टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है? फ्रॉम द इंटेस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग. एंड सर्टोलाई सेल्स आर हेल्पिंग इन द नरिशमेंट डेवलपमेंट. ठीक है. और अल्टीमेटली जो सेल्स थी वो थी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. ठीक है. अब आता है कि ये थोड़ा सा टेस्टिस यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है कि ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए. ये लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि जो ओवल ऑर्गन था यहाँ पे देखिए ये दीज आर द मेन सेल्स. दिस इज द सेमिनल कैन से प्रोड्यूसिंग सीमेन प्रोड्यूसिंग सेल्स. ठीक है. यहाँ से दिस बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे थोड़ा सा खोला कर दिखाया हुआ है. एंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस यहाँ भी जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ से सटी रहती हैं द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स. जब धीरे डेवलप होती हैं फाइनली इस ल्यूमेन में आता है स्पर्म. ठीक है. जब ल्यूमेन में स्पर्म आ गया तो बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म नाउ द स्पर्म विल गो फ्रॉम दिस टू इन दिस रेटिटेस्टिस एंड फ्रॉम दिस टू द एपिडिडमिस एंड देन टू द वासा डिफरेंस एंड देन टू द इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो दिस इज द बेसल लेमिना ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना. ये बेसल लेमिना है. और ये देखिए यहाँ पे जो सेल्स हैं दीज आर द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स. स्पर्मेटोगोनियम सेल्स दे विल गो फॉर द माइटोसिस. माइटोसिस में जाके आगे बढ़ेंगी तो ये बन गया देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अगेन डिवाइड इनटू बिकम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन these secondary spermatocyte will further develop into the 4 early spermatids. जब अर्ली स्पर्मेटिड बन जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे ल्यूमेन में क्या आ जाएगा? द स्पर्मेटिड्स. और यहाँ पे ल्यूमेन में आ जाएंगे द मैच्योर स्पर्म्स. ठीक है. सो दीज आर द मैच्योर स्पर्म्स. कहाँ से शुरू हुआ कहानी? यहाँ से प्राइमरी से गए सेकेंडरी, सेकेंडरी से लास्ट में यहाँ पे ल्यूमेन में. दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और क्लियर देखने के लिए अभी देखेंगे थोड़ी देर में. तो दीज आर द सर्टोलाई सेल्स और वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स. जो सर्टोलाई सेल्स हैं दे आर हेल्पिंग एंड द स्पर्म सेल्स आर द स्पर्मेटोगोनियम. यहाँ पे सर्टोलाई सेल्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन. दे फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर. अभी पढ़ेंगे वो क्या होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर. और क्या होता है? दे सपोर्ट डेवलपिंग स्पर्म सेल्स. जो स्पर्म सेल्स डेवलप हो रही हैं उनको सपोर्ट करती हैं. एंड प्रोड्यूस फ्लूइड एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमेन. ठीक है. फ्लूइड भी प्रोड्यूस करती हैं और कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमेन. एंड सिक्रीट इनिबिन विच स्लोज स्पर्म प्रोडक्शन. इनिबिन एक एंजाइम होता है जो कि इनिबिट कर रहा है टू द स्पर्म प्रोडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे ये फिर से देखिए ये बेसल लेमिना हो गया या बेसल मेम्ब्रेन हो गया. ये स्पर्मेटोगोनियम है एंड दिस इज डेवलपिंग. और डेवलप होने के बाद देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लास्ट में यहाँ पे ल्यूमेन में आ जा रही चीज़ें. सो स्पर्मेटोगोनियम विच इज हैविंग 2n, it is a stem cell. Then the primary spermatocyte which is having again 2n. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज हैविंग सिंगल n. यहाँ पे देखिए डिवीजन हो गया, मियोसिस 1 हो गया. And then this is going to early spermatid which is having again n number and then late spermatids. ठीक है. तो धीरे धीरे और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे दिस इज द सर्टोलाई सेल. तो ये जो दिख रहे हैं सर्टोलाई सेल के बाद में यहाँ पे बाउंड्री बना हुआ है, ये बाउंड्री बना हुआ है. तो जो बाउंड्री है दिस इज मेकिंग द ब्लड टेस्टिस बैरियर. एकदम बैरियर बना देता है कि स्पर्म जो डेवलप हो रहा है उस पर किसी और चीज़ का इफेक्ट ना पड़े, वो आराम से डेवलप हो, मैचुरेशन हो. यानी उसके साथ किसी और चीज़ का मिक्सिंग ना हो, कोई एंटीजन उस पर काम ना कर पाए या कॉमन जो सेल्स हैं उसके साथ इंटरेक्शन ना कर पाए. क्योंकि हमारी जो हमारी ऑटो डिफेंसिव सेल्स हैं, सो दैट डिफेंसिव सेल मे थिंक अबाउट दैट स्पर्म इज अ आउटसाइड सेल. सो दे मे किल द स्पर्म. सो दैट्स व्हाई दिस बैरियर इज नेसेसरी. अब बताते हैं कि क्यों होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर.
ठीक है, तो फाउंड बाय द टाइट जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सर्टोलाइज सेल, जैसे सर्टोलाइज सेल्स होती है ऐसे ये टाइट जंक्शन बन गया, ठीक है, दिस इज वन सर्टोलाइज सेल, दिस इज सेकंड सर्टोलाइज, तो यहाँ पे क्या होगा एक तरह से दिस बिकम्स द टाइट जंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में नथिंग कैन बी पास्ड फ्रॉम दिस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एनाटॉमिकल एज वेल एज डायनेमिक फंक्शनल बैरियर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बेसल मेम्ब्रेन टू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, स्टेरॉइड्स, मैच्योरिंग जर्म सेल्स वो जो होते हैं वो तुरंत ल्यूमेन में ना पहुंच जाएं, इसलिए यहाँ पे बीच बीच में बैरियर लगा रहता है। और क्या करता है फंक्शन, मेंटेन कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिच इन एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, पोटेशियम, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड्स, ये कंपोजिशन को भी मेंटेन कर रहा है। एंड प्रोटेक्ट जर्म सेल्स फ्रॉम नॉक्सियस एजेंट्स, नॉक्सियस एजेंट्स जर्म सेल्स को परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो एक तरह से वो प्रिवेंट भी कर रही है। एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल्स इनटू ब्लड, ठीक है, अगर वो जर्म सेल जो डेवलप हो रही थी वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गई, इफ इट इज कमिंग इन द ब्लड सर्कुलेशन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, द ब्लड सेल विल डिटेक्ट इट एज एन एंटीजन, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगा टू द ओन सेल, जो हमारी स्पर्म सेल है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सकता है, तो इसलिए दिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज मस्ट। और क्या करता है, नंबर 5, एस्टेब्लिश ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक बैलेंस इज नीडेड, दस फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, ये सब जो फंक्शन था दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर का। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज गोइंग ऑन। क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम विद 2n यानी 46 क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई बाई माइटोसिस, ठीक है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, तो माइटोसिस से डिवाइड होगा तो दो जर्म सेल बना, एक जो होता है अगेन मैं बता रहा हूँ फिर से वो रिजर्वायर के रूप में काम करेगा, और एक जो अनदर था वो फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में चला जाता है, ठीक है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विद 2n, ये रहा, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन गिव्स 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ पे मियोसिस हुई, दिस इज फर्स्ट मियोसिस in the primary spermatocyte which gives us 2 secondary spermatocytes each with 23 chromosomes, यहाँ पे n हो गया, n number of chromosomes हो गया, ठीक है, 2n से n हो गया। then second meiosis division gives 4 spermatids with 23 single stranded chromosomes। secondary meiosis हुआ किसमें हुआ, in the सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अंडरगोइंग मियोसिस 2 एंड गिविंग द जनरेशन ऑफ 2 स्पर्मेटिड्स, यानी 4 नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स आर नाउ कमिंग टू द पिक्चर, ईच ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स डेवलप इनटू अ स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। फिर से देखिए, ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये 2n माइटोसिस हुआ, इसमें से एक ये बच गई, यहाँ पे ये रहती है यहाँ पर रिमेनिंग, सपोज दिस इज विल रिमेन एंड दिस इज गोइंग फर्दर डेवलपमेंट, दिस 2n डिफरेंशिएट हुआ एंड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, माइटोसिस हो गया एंड दिस आफ्टर दिस इज फर्स्ट मियोसिस इज गिविंग राइज टू द n, दिस इज 2n इज डिवाइडेड इनटू n, दो हमारे पास मिल गई, बिकॉज ऑफ फर्स्ट मियोसिस वी आर हैविंग 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जब यहाँ पे मियोसिस 2 होगा, फॉर बिकॉज ऑफ दैट मियोसिस 2 इन दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इट विल गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ 4 प्राइमरी स्पर्मेटिड्स, ये n करके यहाँ पे 4 हमको सेल मिल जाती है, ठीक है, अल्टीमेटली दिस विल डेवलप इनटू 4 स्पर्म्स, क्लियर। सो दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे अगेन वो पिक्चर दिखाया हुआ है कि जो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के साथ because it will separate the developing sperm from the normal environment, ताकि वो ब्लड में मिक्स ना हो जाए या ब्लड की चीज़ें उन पे एक्ट ना करें, उनका मैच्योरेशन डेवलपमेंट सही से होता रहे।
एंड दिस इज अगेन द स्पर्मेटिड सेल एंड दिस इज सेंट्रियोल। देख रहे हैं सेल में डेवलपमेंट मैचुरेशन कैसे हो रहा है, धीरे धीरे सेल का साइज कैसा होता जा रहा है। आफ्टर दैट साइज ऑफ सेल न्यूक्लियस कहाँ पे चला गया, फ्लैजिलम डेवलप होने लग गया, एंड देन दिस यू कैन सी द लॉन्ग फ्लैजिलम, है ना। एक्सेस जो साइटोप्लाज्म था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इन दिस यू कैन सी, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया। अल्टीमेटली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है एंड लॉन्ग टेल बचा हुआ है एंड डीएनए मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया है एंड द एक्रोसोम। ठीक है, सो दिस इज द मैच्योर स्पर्म नाउ। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इतना सब आइडिया से में समझ में आ गया कि यार यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, है ना, और फ्रक्टोज हमारे हेल्प कर रहा था। दीज आर द थिंग्स विच आर, दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी अगर ये हो या ना हो तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी या नहीं होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला हमारे पास है FSH। इट इज़ द की गोनाडोट्रोपिन। कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। दोनों वहीं से निकल रहे हैं, FSH भी LSH भी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। इट समहाउ हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, यानी फॉलिकल, जैसे ग्रेफिन फॉलिकल पे काम कर रहा था FSH इन फीमेल्स, तो वैसे ही FSH काम कर रहा है यहाँ पे इन द डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, फॉर दिस मे बी FSH स्टिमुलेट द सर्टोलाइज सेल टू प्रोड्यूस सम लोकल फैक्टर्स। इसका इफेक्ट सर्टोलाइज सेल्स पे भी है, ताकि अल्टीमेटली स्पर्मेटिड विल डेवलप इनटू द स्पर्म, यानी स्पर्म का जो डेवलपमेंट मैचुरेशन हो रहा है उस पर काम कर रहा है FSH। LH क्या करता है, LH इज दिस इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इट हेल्प्स इन द ऑन द लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल का काम क्या है, टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इज हाई concentration is essential for growth, multiplication and maturation of the gametes। जो gametes, जो मेल gametes थे स्पर्मेटोगोनियम, उनका ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन, माइटोसिस, मियोसिस हो रहा है एंड फाइनल मैचुरेशन। all the things are controlled by this testosterone। this high concentration of testosterone within the seminal fluid is maintained ड्यू टू, यहाँ पे बात है हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो हाई कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होता है, बिकॉज ऑफ दीज। नंबर 1, काउंटर करंट एक्सचेंज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द स्पर्मेटिक वेसल्स, लीडिंग सेल्स बीइंग सिचुएटेड क्लोज टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखा था वहाँ पिक्चर में कि लीडिंग सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कैसे पास में थी, है ना। ट्यूब्यूल्स के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था, फिर पूरा पूरा जहाँ पे भी जो बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, दैट्स वाई दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स के बीच बीच में। टेस्टोस्टेरोन कैन एंटर इजीली इनटू द ट्यूब्यूल। अगर वो सेल कहीं और होती तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इतना आसानी से नहीं पहुंच पाता, बट इट इज वेरी नियर टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट्स वाई इट इज हैविंग हाई कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इन द ल्यूमिनल फ्लूइड। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था उसका जो ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन में भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ABP। दिस प्रोटीन इज बाइंडिंग द टेस्टोस्टेरोन एंड द ब्लड टेस्टिस बैरियर। और फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, सर्टोलाइज सेल्स। यस, सर्टोलाइज सेल्स इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड temperature is about 32 degrees centigrade is required। that's why in the first class I told you for proper sperm development the temperature should be like this only। that's why testis has been kept outside the body in the scrotal sac, है ना। नेक्स्ट आता है 6th नंबर, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एंड अदर हार्मोन्स नेसेसरी फॉर जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ आर ऑल्सो नेसेसरी इन नॉर्मल कंसंट्रेशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि बाकी सेल्स की डेवलपमेंट मैचुरेशन हो रहा है, तो वैसा ही इस, क्योंकि ये भी डेवलपिंग सेल है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटिड स्पर्म बन रहा है, तो उसके लिए भी जरूरी है। एंड देन द सेमिनल फ्लूइड विच इज हैविंग विद इट्स फ्रुक्टोज कंटेंट हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। इसके अलावा
vitamin E, vitamin C, and several members of the B complex are required for normal spermatogenesis. Vitamin E, C and B complex. होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. दैट वी डिस्कस टुडे सीमेन, इट्स कंपोजिशन, sperm capacitation, spermatogenesis. It is now clear to you. In the next session we will discuss about the testosterone. That means its function, its synthesis and regulation of secretion. testosterone कब निकलता है, कब नहीं निकलता है, या उसका कैसे रेगुलेट होता है, अंडर विच हॉर्मोन्स. ठीक है. So next session we will discuss. Till then, thanks, have a nice day and keep studying. मेरे पढ़ाकू बच्चों.